It is difficult to say what is socialism because socialism emerged as a sharp reaction to individualism. इंडिविजुअल बिहेवियर के शार्प रिएक्शन में सोशलिज्म इमर्ज हुआ था. No doubt it's a political philosophy, as well as it is also called a great movement. In socialism, economic principles and logic have amalgamated with the political principles in such a manner that it has become extremely difficult to separate them. So इस socialism में economic principles इस तरीके से मिल गए हैं कि समझ ही नहीं सकते हैं, आप इनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं कौन सा सोशलिज्म है और कौन सा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है. The supporters of socialism hold some similar views regarding many things and because of many contradictory definitions with regard to socialism. The term socialism is used for a particular setup and way of life. Different writers have used socialism in different ways with different meanings. This is why Joad writes that socialism is like a hat that has lost its shape because everybody wears it. Definition of socialism. Humphrey says that socialism is a system of society in which means of the life belong to the community. Socialism ऐसा system है society का जिसमें life जो है वो community को as a whole, as a total belong करती है. And are developed and operated by the community with the aims of promoting the general well-being. और इसी सोसाइटी को प्रमोट भी इनकी वेलबींग के लिए कम्युनिटी ही करती है. In the words of Hungem, socialism is a political movement of class which aims to abolish exploitation by means of the collective ownership and democratic management on the basis of instrument of production and distribution. अगर हम गम की डेफिनेशन पे देखें तो ये एक प्रकार का पॉलिटिकल मूवमेंट है जो एम करता है कि हर प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाए, कलेक्टिव ओनरशिप पाए और डेमोक्रेटिकली उसको मैनेज किया जाए जिससे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों यूनिफॉर्मली हो सके. According to some other author Imlay, socialism means the organization of workers for the conquest of political power for the purpose of transforming capitalist property into social prosperity. इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सोशल या फिर कम्युनिटी पब्लिक प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करना. Some of the definitions given are comprehensive, while others are narrow. A look at the objectives of socialism, that means to eliminate disease and ignorance, limit property and privilege, and enrichment of ethical and spiritual, and it all results in making all citizens equal and as a whole in one single community. Features of socialism. Main features of socialism. All socialists, irrespective of their alignment with any branch of socialism, except 4 particular points with regard to features. State and not individual should control the means of production. State should control the means of production and not the individuals. Production should be based on social necessity and not on individual profit. Production हमेशा सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए. Individual profit motive should be replaced by that of social service. Individual profit का जो motive है उसको social service से replace करना चाहिए. Open competition and arbitrary production should give way to cooperation and definite production. ये जो open competition का और arbitrary production का concept है इसको हटाकर cooperation और definite production को रास्ता देना चाहिए. Development of socialism. During the period from 1750 to 1850, there was a great development of science, art, and vocational knowledge in Europe. The influence of middle classes also increased. After this, industrial revolution took place, and the capitalist influence increased. During the 19th century, many countries of Europe saw the rise of democracy and nationalism. Yet, due to the influence of individualism, governments did not feel it necessary to have economic control or to remove the ills of capitalism. Owing to this, the condition of the working classes deteriorated. Having been influenced by the condition of the workers, Karl Marx produced sufficient literature on scientific socialism. Karl Marx ने बहुत सारी literature produce करी scientific socialism.
प्रायर टू कार्ल मार्क्स देयर वर मेनी सोशलिस्ट। कार्ल मार्क्स से पहले भी बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट हुआ करते थे जिन्हें सजेस्ट किया था सोशल कंट्रोल के बारे में प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, who had suggested social control over private property. They were deeply touched by the miserable condition of the poor. वो बहुत ज्यादा ही दुखी थे ये जान के कि पुअर की कंडीशन उस वक्त क्या है, एंड दैट्स व्हाई दे सजेस्टेड दीज मेजर्स, और इसी के लिए उन्होंने ये मेजर्स सजेस्ट करे। टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम कार्ल मार्क्स दे आर कॉल्ड यूटोपियन सोशलिस्ट। कार्ल मार्क्स से उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनको यूटोपियन सोशलिस्ट के नाम से जाना जाता है, because they did not give any solid arguments, because वो कोई solid arguments नहीं देते हैं like Marx about the practical form of socialism. Next is essentials of utopian socialism. Utopian socialism had a great faith in human intellect, good nature and goodwill. Utopian socialism का इंसान के दिमाग पर, उनके नेचर पे और उनकी अच्छाई पर बहुत ज्यादा विश्वास था। These socialists were against capitalism and say that it created not only social and economic inequality. ये सोशलिस्ट कभी कैपिटलिज्म के फेवर में नहीं थे, बिकॉज उनको ऐसा लगता था, उनके विचार ये थे कि वो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, बट ऑल्सो डीजनरेटेड मोरालिटी, और इसी के साथ वो मोरालिटी को भी डीजनरेट करते हैं, खत्म करते हैं, और यू कैन से दैट कि मोरालिटी का नाश करते हैं। सो दे वांटेड टू ब्रिंग इन सोशलिज्म बाय अबॉलिशिंग कैपिटलिज्म, इसलिए वो चाहते थे कि सोशलिज्म आना चाहिए और कैपिटलिज्म खत्म होना चाहिए। However, they believed that socialism could be established by will. फिर भी उनका ये भी विचार था कि सोशलिज्म हर व्यक्ति की विल और सब साथ में के कलेक्टिव विल से एस्टैब्लिश हो सकता था। This was a great mistake on their part. Apart from all this, how there was a downfall of utopian socialism? There was less reality and more idealism. एक्चुअल जो रियलिटी वास्तविकता तो उसमें कम थी और विचारिकता ज्यादा थी। So, when Karl Marx preached his scientific socialism, utopian socialism vanished in no time. इसी कारण से जब कार्ल मार्क्स ने अपने सोशलिज्म के विचार रखे, यूटोपियन सोशलिज्म को खत्म होने में वक्त ही नहीं लगा। मार्क्स emphasized the socialization of the means of production. मार्क्स ने means of production के socialization की बात रखी, which is the chief basis of modern socialization, जो कि एक बहुत बड़ा बेस है modern socialization का। Arguments in favor of socialism. First one, socialism contradicts capitalism, which is based on exploitation. Socialism हमेशा ही capitalism के खिलाफ होता है because capitalism exploit करता है. Socialism is always against capitalism, which is based on exploitation. The capitalists exploit the poor and lead an idle and luxurious life on the profits earned by the poor. कैपिटलिज्म हमेशा ही एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पे काम करता है और वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करता है और अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए सारे प्रॉफिट्स गरीबों से काम करा के उनसे निकालता है, पर उनको उनके हिस्से का पैसा नहीं देता है। देयर इज इकोनॉमिक इक्वालिटी ड्यू टू कैपिटलिज्म, इसीलिए कैपिटलिज्म के कारण इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है, बिकॉज जो अमीर है वो और अमीर बनता जाता है और जो गरीब है वो और गरीब बनता जाता है, विच हिंडर सोशल प्रोग्रेस। और जहाँ इनइक्वालिटी होती है वहां पे सोशल प्रोग्रेस नहीं होती है। इसीलिए सोशलिज्म वांट्स टू पुट एन एंड टू दिस एक्सप्लॉयटेशन एंड एस्टैब्लिश सोशल इक्वालिटी। इसी कारण से सोशलिज्म इन सारी एक्सप्लॉयटेशन पे फुल स्टॉप लगाना चाहता है और एक सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहता है। हमारे इंडिया में भी सोशलिज्म का कंसेप्ट है। इंडिया में इंडिविजुअल नीड से पहले सोसाइटी एज अ होल की नीड को देखा जाता है, उनकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाती है। सोशलिज्म प्रिवेंट्स इकोनॉमिक वेस्ट ड्यू टू ओपन कॉम्पिटिशन। सोशलिज्म हमेशा इकोनॉमिक वेस्ट को प्रिवेंट करता है ओपन कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। इन अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम देयर इज एन ओपन इकोनॉमिक कंपटीशन इन विच सच मनी इज स्पेंट ऑन प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सच थिंग्स। पैसा प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजमेंट करने और दूसरी की बेकार चीजों के ऊपर लगाया जाता है। द कैपिटलिस्ट डू नॉट प्रोड्यूस वेल्थ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सिर्फ अपने अकॉर्डिंग पैसा जनरेट करते हैं, सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग पैसा जनरेट नहीं करते।
बट दे प्रोड्यूस गुड्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, वो सिर्फ अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग एंड देयर इज ऑल्सो डर्थ ऑफ मेनी अदर थिंग्स। इससे कुछ तो प्रोड्यूस होता है, पर उस कुछ को प्रोड्यूस करने में बहुत सारी अच्छी चीजों का नुकसान भी होता है, और सबसे बेसिक ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान होता है, बिकॉज पुअर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको उतना पे नहीं किया जाता है, उनको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करके उनको खत्म किया जाता है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स ट्रबल for the society. So this particular situation is troublesome for the whole society. Socialism removes both these evils of capitalism and lays emphasis on cooperation instead of an open competition. Socialism open competition को हटाने की कोशिश करता है और सारे टाइप के evils जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनको हटाकर कॉपरेशन पे एम्फेसाइज करता है कि सब लोगों को साथ मिलके कॉपरेट करके एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। Socialism is based on justice more than capitalism. Socialism न्याय पे ज्यादा विश्वास करता है कैपिटलिज्म की बजाय। Capitalism concentrate the capital of the society in a few hands. कैपिटलिज्म में पैसा कुछ ही लोगों के हाथों में सोसाइटी में होता है, सबके हाथ में नहीं होता है, which is based on injustice. So ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। Socialism wants the social control over factories, ships and railways. सोशलिज्म चाहता है कि सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए फैक्ट्री, शिप, रेलवे और हर चीज पर। इट डज नॉट वांट दैट दीज शुड बी कंट्रोल्ड बाय फ्यू पर्सन। सोशलिज्म ये नहीं कहता है कि सिर्फ कुछ गिने चुने 4 व्यक्तियों के पास इनका कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन जस्टिस, इसीलिए सोशलिज्म न्याय की स्थापना करता है, अन्याय को हटाता है। सोशलिज्म इज मोर डेमोक्रेटिक देन कैपिटलिस्टिक सिस्टम। सोशलिज्म ज्यादा डेमोक्रेटिक है कैपिटलिस्ट सिस्टम से। The question of economic equality does not arise in a capitalistic system, because in this system the wealth of the country is concentrated in the hands of a few person. Capitalist system में डेमोक्रेसी का कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है कभी। क्यों नहीं आता है? बिकॉज जो पैसा होता है, जो कैपिटल होता है, जो वेल्थ होती है, वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होती है, सबके हाथ में होती ही नहीं है। Where there is a great economic inequality, success as democracy becomes doubtful. जहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, वहां पर डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल होना ना के बराबर है। इन ऑर्डर टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इट इज एसेंशियल टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म। डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना बहुत अनिवार्य है। सोशलिज्म इज मोर नेचुरल एंड कैपिटलिज्म इज आर्टिफिशियल एंड फेक। The socialists are of the view that socialism is more natural than capitalism. सोशलिस्ट को लगता है कि सोशलिज्म का कंसेप्ट ज्यादा नेचुरल है एज कंपेयर टू कैपिटलिज्म। नेचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एयर, वाटर, रेन इक्वली अमंग ऑल द पीपल। जैसे हवा है, पानी है, बारिश है, सब पे इक्वली पड़ती है, किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम नहीं आती है। उसी तरीके से ये डिजायरेबल है कि सोशल कंट्रोल भी हर व्यक्ति का अपनी जमीन पर, अपने रिसोर्सेस पे इक्वल होना चाहिए। So it is desirable that there should be social control over land and minerals equally, like the nature does. Socialism is more scientific. Socialism is more scientific than capitalism, because capitalism safeguards the interest of a few. Capitalism सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों का interest safeguard करता है, while socialism protects the interest of the society. Socialism society के interest को safeguard करता है। Socialism attaches more importance to the society. Socialism society को ज्यादा importance देता है than to the individuals and urges the individuals to devote themselves to the service of the community. Socialism society की needs को importance देता है, individuals की needs को importance नहीं देता, और individual से ये request कही जाती है कि आप society या community को as a whole serve करें। ये तो हमारी बात हो गई क्या विचार है जो सोशलिज्म के फेवर में, बट हर चीज फेवर में नहीं होती है। Every coin has two sides, advantage as well as disadvantage. So now we'll look at some of the factors which are criticizing with regard to socialism. So socialism has been criticized as it kills individual initiative.
एक इंडिविजुअल के जो इनिशिएटिव्स है उनको सोशलिज्म पूरी तरीके से खत्म कर देता है, बिकॉज सोसाइटी में मेजॉरिटी नीड्स को वैल्यू दी जाती है, मेजॉरिटी पब्लिक के बारे में सोचा जाता है, जो एक छोटा सा ग्रुप क्या कह रहा है, एक अकेला इंसान क्या कह रहा है, उसकी वहां पे कोई अहमियत नहीं होती है. So each individual work more and more for private property. In socialism, private property can't be utilized for investment in the market to earn profit. Individual initiative to produce more will be killed under social control. प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कोई महत्व नहीं होता है, इंडिविजुअल के काम का भी कोई महत्व इसमें नहीं होता है. बिकॉज क्यों नहीं होता है? बिकॉज इंडिविजुअल कितना भी इनिशिएशन कर ले कुछ प्रोड्यूस करने के, सोशल कंट्रोल उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता है. Under socialism, functions of the state would be so much enlarged that it would not be possible for it to discharge them well. सोशलिज्म में स्टेट के फंक्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि स्टेट जो है उन फंक्शंस को प्रॉपरली डिस्चार्ज ही नहीं कर पाती, पूरा ही नहीं कर पाती है. According to socialism, the state should not only take up protective functions like maintenance of law and order, justice and protection against foreign aggression, but it should also increase the protection. सोशलिज्म के विचारों के हिसाब से स्टेट का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो लॉ और ऑर्डर बना के रखे, न्याय की स्थापना करे, कंट्री को इंटरनेशनल फॉरेन एग्रेशन से, वॉर लाइक सिचुएशन से बचा के रखे, पर उनका ये भी काम है कि वो प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दे. फॉर दिस पर्पस शुड टेक अप द सोशलिज्म ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इसी कारण से सोशलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू परफॉर्म एनॉर्मस फंक्शन. इसीलिए स्टेट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारे ही फंक्शंस को खुद परफॉर्म करना. सोशलिज्म विल फॉल इन प्रैक्टिस. क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू दैट सोशलिज्म विल फेल इन प्रैक्टिस. क्रिटिक्स तो कैसा लगता है कि सोशलिज्म प्रैक्टिस के साथ खत्म भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा. सोशलिज्म वांट्स टू एस्टैब्लिश पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. सोशलिज्म चाहता है कि शांति और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दोनों एस्टैब्लिश हो, और इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और सोशल ills खत्म भी किए जाए, and to remove economic disparity and social ills. But in practice this is very difficult to accomplish. पर हकीकत में इसे पूरा करना काफी मुश्किल होता है. Socialism divides the society into classes. Socialism सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड करता है, एक होती है कैपिटलिस्ट और एक होती है वर्कर्स की. Socialism divides the society into two classes, capitalists and workers. Their interests are conflicting and there can be no unity between them. दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से बहुत असमान होते हैं और उन लोगों में इतनी असमानता होती है कि वो कभी साथ नहीं आ सकते हैं. This brings about conflicts and clashes in the society. इसी कारण से सोसाइटी में एकता आने की बजाय लड़ाई झगड़े होते हैं. सोशलिज्म ऑल्सो किल्स इंडिविजुअल फ्रीडम. इंडिविजुअल फ्रीडम को तो सोशलिज्म पूरी तरीके से हटाता ही. सोशलिज्म गिव्स मेनी पावर टू द स्टेट एंड इट इंटरफेयर्स इन एवरी स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल एक्टिविटी. सोशलिज्म सारा पावर, सारी सत्ता स्टेट के हाथ में देता है और फिर इंडिविजुअल की एक्टिविटी में स्टेट इंटरफेयर करने लग जाती है. दिस मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम कम्स टू एन एंड. इसी कारण से इंडिविजुअल फ्रीडम कम्स टू एन एंड. So socialism may be criticized bitterly, but the progressive powers of the world were against capitalism and they were in favor of socialism. Socialism criticize करने के भी बहुत सारे पॉइंट्स है, पर जो प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है वो कैपिटलिज्म के फेवर में कम और सोशलाइजेशन के फेवर में ज्यादा है. Today socialization is seen in different parts of Asia in one form or the other. एशिया के बहुत पार्ट्स में आज की तारीख में सोशलिज्म देखने को मिलता है. In England in 1974, the Labour Party formed its government. इंग्लैंड में 1974 में लेबर पार्टी ने अपनी सरकार बनाई. In 1966 election, Labour Party won with a thumping majority. 1966 में लेबर पार्टी ने बहुत अच्छे वोट्स के साथ इलेक्शन जीता भी है. In India, the ruling Congress Party aims to establish socialism. इंडिया में भी पहले जब कांग्रेस का राज था तब बहुत अच्छे वोट से सोशलिज्म स्टैब्लिश किया गया और फिर धीरे धीरे करके बीजेपी का आगमन हुआ और मोदी सरकार आई. The Congress repeated its determination in its 1955 session also at Avdi, Tamil Nadu, and in 1964 at Bhubaneswar to establish socialism in the country. Post independence कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया कि 1959 में अवधि तमिलनाडु में और 1964 में भुवनेश्वर में उन्होंने जो सोशलिज्म स्टैब्लिश किया था कंट्री में वो सराहनीय है. Many of the drawbacks of socialism can be removed.
जो भी ये गिने चुने क्रिटिसाइजिंग फैक्टर्स इनको रिमूव किया जा सकता है. इट इज पॉजिटिवली बेटर देन कैपिटलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म. कुछ भी कहा जाए पर कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म से सोशलिज्म काफी बेहतर है, बिकॉज इट एम्स टू रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि ये इकोनॉमिक इक्वालिटी को हटाने की कोशिश करता है, एंड टू स्टैब्लिश कंफर्ट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, और कंफर्ट पीस और प्रोस्पेरिटी को स्टैब्लिश करता है. सोशलिस्ट गवर्नमेंट हैव मेड मेनी लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स. सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए वर्कर्स के बेनिफिट के लिए और अबॉलिश किया कैपिटलिज्म को. इसी कारण इट गॉट एक्सटेंडेड इन द वर्ल्ड एट अ ग्रेट स्पीड. इसी कारण से वर्ल्ड में बहुत अच्छी स्पीड से एक्सपैंड होने लगा. सो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि सोशलिज्म होता क्या है, डिफरेंट राइटर्स ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है, सोशलिज्म के मेन 4 फीचर्स, दैट स्टेट is important, not the individual should control the means of production. So the means of production are in the hands of the state. Production should be according to the society's need, not as per the individual need. Individual profit motive should be always be replaced by the social service motives. ओपन कंपटीशन को खत्म करके कोऑपरेटिव और डेफिनेट प्रोडक्शन को लाना चाहिए. इसके बाद हमने ये देखा है कि डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म किस प्रकार से हुआ 1970 से 1850 तक. यूटोपियन सोशलिज्म क्या होता है और उसके क्या एसेंशियल्स थे, कैसे यूटोपियन सोशलिज्म किन कारणवश खत्म हो चुका और कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे लोगों ने, जनता ने क्यों विश्वास किया. उसके बाद हम लोगों ने कुछ फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स देखे थे या फिर मेरिट्स देखे थे सोशलिज्म के, कि सोशलिज्म कैपिटलिज्म को खत्म करता है और एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करता है. सोशलिज्म इकोनॉमिक वेस्ट को हटाता है और ओपन कंपटीशन को खत्म करता है. सोशलिज्म न्याय की स्थापना करता है. सोशलिज्म डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में मदद करता है. वो ज्यादा नेचुरल साइंटिफिक कंसेप्ट है. And last but not the least, we have also seen some criticizing factors of socialism, that it kills individual initiative. It has given a lot of things in the hands of the state, which the state is not able to do it properly. It will soon fall out of practice. It divides the society into two class, rich and poor, and it kills individual freedom as well. So that's it for today. Thank you.